Very good morning, student. I am Ashwin Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, inverse of matrix. In the case of the inverse of matrix, we have two types of the methods. First one based on the adjoint or cofactor, and second one is the row elementary method. लेट वी कंसिडर ए विल बी इक्वल ऑफ 2 1 1 1. मैं आपको दोनों तरीके से दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा. ठीक है, ए विल बी इक्वल ऑफ 2 1 1 1. वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, देन फाइंड ए इनवर्स. व्हाट इज द मीन ऑफ द ए इनवर्स? ठीक है, ए इनवर्स विल बी इक्वल ऑफ एडजॉइंट ए बाय मोड ए. टू फाइंड एडजॉइंट वी हैव टू cofactor, so we will start with the cofactor. Solution is there, student. बिल्कुल simple solution. cofactor of 2 equal to -1. Position of 2, that means the first row first column. Front of 2, that means 1. Student, cofactor of these 1 -1, first row second column, and front of 1, that means 1. I hope student is getting the proper solution. Then 1 will be equal of second row first column, front of 1 will be equal of 1. Now again 1 will be equal of -1, 2 plus 2, front of 1 will be equal of 2. I hope -1, 1 plus 1 will be equal of 2, -1 whole power 3, -1 whole power 3, -1 whole power 4. Student, here minus square, that means a minus plus, then -1, then -1, then +2. ठीक है, in rough we can write the cofactors. The cofactor of 2 will be equal 1. The cofactor of 1 will be equal -1, cofactor of 1 -1, cofactor of 1 will be equal of 2. Now how to calculate adjoint? I hope student there is the first step to find the A inverse. आपको इतना समझ आ गया होगा A inverse निकालने के लिए. अब मैं आपको बोल रहा हूँ हमको adjoint कैसे निकालते हैं. आपने रफ में cofactor से निकाल लिए. Now adjoint of A will be equal the row first row convert into first column, then means 1 -1 and -1 2. Here adjoint A. Now how to calculate the mode A? Mode A, that means take it 2 1 1 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 1 will -1 into 1. 2 into 1 equal to 2, 1 minus 1 equal to 1, 2 minus 1 will be equal of 1. That means mode A equal to 1. Since we know that the formula of A inverse will be equal of adjoint A by mode A. Student, just tell me adjoint A. Adjoint A, that means 1 -1 and -1 2, and mode A that means 1. मतलब 1 से हर एक एलिमेंट में डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं मिलेगा. सो 1 -1 and 2 will be equal of A inverse by use of adjoint method. I hope student you getting the proper solution of the first question. There is A will be equal of matrix, we find the inverse of matrix. Student, in the previous part we getting the A inverse of matrices A, but by use of the adjoint method.
Now we taking the another type of method, row elementary operation. Row elementary operation that means ठीक है ऑल ऑपरेशंस इन रो, हम कॉलम में यूज नहीं कर सकते हैं. देन आफ्टर वी यूज द अनदर अप्रोच कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस. स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, ठीक है. जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. बाय यूज ऑफ द एडजॉइंट मेथड, बाय यूज ऑफ द रो एलिमेंट्री मेथड और बाय यूज ऑफ द कॉलम एलिमेंट्री मेथड. और अगर जो पर्टिकुलर नाम नहीं आता तो डिपेंड्स ऑन यू चूज एनी वन मेथड. अब ठीक है, ए विल बी इक्वल ऑफ 2 1 1 1. दैट मीन्स सेम क्वेश्चन इज देयर, ए विल बी इक्वल ऑफ 2 1 1 1, बट वी यूज रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ठीक है, ए इनवर्स विल बी इक्वल ऑफ, ए इनवर्स हमारा ये आना चाहिए, हम कोई सी मेथड यूज करें. सो बाय द स्टेटमेंट ऑफ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन वी कैन राइट A will be equal of I into A. स्टूडेंट I into A that means यहाँ पर I हमारे लिए क्या, I that means डायगोनल मैट्रिक्स एंड A that means गिवन मैट्रिक्स. और ये जो A है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ट्रांसफॉर्म में A इनवर्स के फॉर्म में. सो A will be equivalent to 1 1 1 and I that means I diagonal matrix will be equal of I 1 0 0 1. I know you that into A. Students just focus. ठीक है, हमारे माइंड में हमको ये होना चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स दिए उनको हम धीरे धीरे डायगोनल मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैंने एक ऑपरेशन लगाया, ठीक है, R1 कन्वर्ट इनटू R2. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस एरो, ठीक है, R1 एंड R2 ट्रांसफॉर्म हो जाए, दैट मीन्स R1 कन्वर्ट इनटू R2 और R2 कन्वर्ट इनटू R1. धीरे से देखेंगे ऑपरेशन का मतलब. ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे लिए R1 है और ये मेरे लिए R2 है, मतलब कहीं ना कहीं R2 1 1 और 2 1 में कन्वर्ट हो जाए. वाई, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा वाई, बिकॉज मैंने बताया मुझे कहीं ना कहीं ऐसा चाहिए. तो फर्स्ट प्लेस पे क्या दिख रहा है 1 और यहाँ पर कितना है 2. तो स्टूडेंट आप बोलेंगे मे बी डिवाइड बाई 2. अगर जो मैं ये 2 से डिवाइड कर देता तो मुझे यहाँ पर 1/2 मिलता. दैट मीन्स सम अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर. तो मैंने सिंपल सा करा है R2 को R1 और R1 को R2 में रिप्लेस. तो मैं कैसा लिखूंगा R1, ठीक है, रिप्लेस बाय R2 और R2 रिप्लेस बाय R1. सर ठीक है, ऑपरेशन अगर जो LHS में होगा तो ऑपरेशन RHS में भी डिफाइंड होगा. दैट मीन्स हियर R2 replace in the place of R1 and R1 in the place of R2 dot A. I hope student you getting the first step. Now we taking the another operation R2 minus R1, R2 माइनस 1 इंटू R1. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस, ध्यान से देखेंगे. अगर जो मैं सेंटेंस को मतलब समझूँ तो R2, वेयर इज द R2, R2, ठीक है, R2 दैट मीन्स 2 में, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, R1, ठीक है, R1 में मल्टी, ठीक है, ये कितना लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 लिखा हुआ. अगर जो मैं यहाँ पर, ठीक है, 1 की जगह पर 2 ले लेते हैं सर अपन. ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर जो मैं इस वाले में 2 का -2 का मल्टीप्लाई करके इसमें +1 प्लस करूं, ठीक है, इस वाले में मैं -2 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, R1 में कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, -2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस करूंगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा 0. ये 1 है, -2 का इंटू करा तो -2 प्लस मतलब कितना हो चुका है ये 0. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मैं R1 में कोई, ठीक है, मैंने यहाँ पर कितना लिखा R2, दैट मीन्स वी ऑपरेट विद द R2, R1 वैसा का वैसा सेम होगा. सेकंड, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, R1 में -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं -2 + 1 विल बी इक्वल ऑफ -1. तो सर ऐसा का ऐसा सेम इधर भी होगा, मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय द -2 + 1 विल बी इक्वल ऑफ -1. then -2 1 into -2 will be equal of -2 plus 0 will be equal of -2.
आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, वी हैव टू यूज ओनली रो एलिमेंट्री मेथड्स, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ रो में मेथड को यूज करना है। नाउ R2 ऑपरेशन -1 इंटू R1, ध्यान से देखिए। ठीक है, मेरे पास जो लाना है, ठीक है, 1001, क्या स्टूडेंट बोला मैंने? 1001, तो यहाँ पर 10 तक आ चुका है मेरे पास। ठीक है, कितना आ चुका है मेरे पास? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 10 तक। अब मैं यहाँ पर -2 + 1, ठीक है, -2 + 1 विल बी इक्वल ऑफ 1, दैट मीन्स -1। ठीक है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली, बिल्कुल आराम से देखिए, यहाँ पर मेरे पास इतने दूर तक आंसर आ चुका है। ठीक है, R2, स्टूडेंट देखिए, मुझे 1001 लाना है और मैं यहाँ पर इतनी दूर तक आ चुका हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे 1 और 0 आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 लाना है, बट ये कितना है? -1। देन वी अप्लाई R2 -1 इंटू R2। वाट हैपन? वाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस ऑपरेशन? R2 में वर्क कर रहा हूँ, R2 में -1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो R2 में जैसे मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस, देन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, ये 0 ये 1, इधर माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो -1 माइनस माइनस प्लस विल बी इक्वल ऑफ A। स्टूडेंट कंपेयर विद द 1001, आई गेटिंग 1 0 एंड 1, दैट मीन्स 3 आंसर्स आर टेकन। नाउ वी हैव टू 0। अब यहाँ पर मुझे 0 बनाना है। ये क्या है? R1, मतलब कहीं ना कहीं R1 में मुझे काम करना है -1 इंटू R2। सर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके ऊपर प्लस कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, कितना लिखूँगा? ये हो गया 1, ये हो गया 0। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये ऊपर जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, -1 + 1 विल बी इक्वल ऑफ 0। ठीक है, आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन। अब ये यहाँ पर भी होगा, अगर जो इसमें माइनस का इंटू होके प्लस होगा तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 1। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 1 विल बी इक्वल ऑफ -1। नीचे मेरे पास -1 और 2 सेम स्टेटमेंट है, विल बी इक्वल ऑफ A। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ठीक है, 1001 विल बी इक्वल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, दैट मीन्स I इक्वल टू विल बी इक्वल ऑफ 1 -1 एंड 2 इंटू A। स्टूडेंट यहाँ पर A जो है वो मल्टीप्लाई में है A, दैट मीन्स A⁴ कितना है? 1। अगर जो ये 1 ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो कितना हो जाएगा? A इनवर्स विल बी इक्वल 1 -1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो लिया था एडजॉइंट मेथड, उसमें भी A इनवर्स सेम आया था, रो एलिमेंट्री मेथड में भी आंसर सेम आया है। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन इज देयर, A विल बी इक्वल ऑफ 2 1 1 1। नाउ वी टेकिंग द अनदर मेथड टू फाइंड A इनवर्स बाय यूज ऑफ द कॉलम एलिमेंट्री मेथड। वी सी एडजॉइंट मेथड और कोफैक्टर मेथड, then after we seen row elementary method. Finally we taking the third method to find out the A inverse, which known as the column elementary method. What is the difference between the row elementary method and column? In the case of the row elementary method we operate with the row, हम सिर्फ रो में ऑपरेशंस करते थे। नाउ वी टेकिंग द ऑपरेशंस इन द डिफरेंट कॉलम्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम्स। नाउ ठीक है, बाय यूज ऑफ द कॉलम एलिमेंट्री मेथड अगेन वी कैन राइट A विल बी इक्वल ऑफ I इंटू A। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द I that means our diagonal matrix, such that A in the place of A we can write 2 1 1 1 again I into A. What is the mean of the I that means our diagonal matrix will be equal of 1 0 0 1 and finally A। स्टूडेंट हमारे माइंड में होना चाहिए 1 0 0 1। ठीक है, मुझे LHS को कैसा बनाना है? वी हैव टू राइट इन द फॉर्म 1 0 0 1, मतलब 1 0। ठीक है, यहाँ पर मुझे कितना चाहिए? यहाँ पर चाहिए 1, बट हियर इज़ द 2। तो मैं ध्यान से देखूँ तो कहीं ना कहीं मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, दैट मीन्स ठीक है C1, ठीक है C1
कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ C2 मे बी राइट स्टूडेंट। ठीक है, 1 1 ये जो कॉलम सेकंड है वो फर्स्ट पे आ जाएगा और फर्स्ट वाला चले जाएगा सेकंड पे। ठीक है, नाउ ठीक है 0 1 और ये कितना हो चुका है 1 0 विल बी इक्विवेलेंट ऑफ LHS। नाउ स्टूडेंट 1 0 0 1 दैट मीन्स वी गेटिंग द 1। ठीक है, हियर अगेन वी नीड टू 0। ठीक है, सो हाउ वी डू इन द C2 ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो C2 है ठीक है में -1 इंटू ये मेरा C1 है, C1 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C2, कहीं ना कहीं -1 का मल्टीप्लाई करके इधर कर रहा हूँ। इससे मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा, बट यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। तो मुझे कुछ अलग मेथड यूज़ करनी चाहिए। अलग मेथड मतलब ठीक है कुछ ना कुछ मुझे कॉलम वाइज करना पड़ेगा। स्टूडेंट देयर इज द प्रॉब्लम। हाँ स्टूडेंट, ये जो 2 है उसके प्लेस पे मुझे कितना लाना है 0। सो मैं कुछ ऐसा करूं कि इसमें मैं -2 का मल्टीप्लाई करके 2 से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा है C2 -2 इंटू C1, मतलब मैं C2 में वर्क करूँगा -2 इंटू C1। तो कहीं ना कहीं -2 का मल्टीप्लाई करा और इसमें प्लस करा तो ये कितना हो चुका 0, -2 का मल्टीप्लाई करा और इसमें प्लस करा तो ये हो चुका -1। इन द प्लेस 1, 1 विल बी इक्वल सेम ऑपरेशन इज देयर। ठीक है, जैसा मैंने इधर करा यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई तो 0 इंटू -2 दैट मीन्स 0, बट हियर -2 प्लस 2 दैट मीन्स -2। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है जैसा आप LHS में कर रहे हैं वैसा का वैसा आपको RHS में भी करना है। नाउ स्टूडेंट 1 1 0 एंड -1 1 1 0 and -1 that means we getting 1 and 0 on the same place, but finally we required the another 0 is here। ठीक है, 4 0 ठीक है 4 0। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो मैं इस -1 को एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, सो ठीक है कैसे करेंगे, C2 में हम काम कर रहे हैं -1 इंटू C2, मतलब कहीं ना कहीं 1 1 माइनस का मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, +1 कन्वर्ट इंटू -1 एंड -2 कन्वर्ट इंटू +2। नाउ स्टूडेंट्स द फाइनल रिजल्ट हियर 1 0 0 1 1 0 0 1, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये 1 भी मिल चुका है बट ये 0 अभी प्राप्त नहीं है। तो मैं क्या करूं, ठीक है वर्क कर रहा हूं C1 में -1 इंटू C2। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, अब फाइनल स्टेप इज देयर। ठीक है 1, ठीक है ये इधर आ भी गया तो ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ये जैसे ही इसमें -1 का मल्टीप्लाई होगा और ये C1 में अटैच होगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 0 एंड 1 आर सेम। ठीक है, यही ऑपरेशन ठीक है मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं -1 किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 का, और इसमें प्लस कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस देन 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने -1 का इंटू करा दैट मीन्स -2 + 1 विल बी इक्वल ऑफ -1। रिजल्ट विल बी -1 एंड 2 इक्विवेलेंट A। बट हम इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये कितना हो गया 1 -1 2 इंटू A। ठीक है, यहाँ से A जो है मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा, किसके बराबर हो जाएगा ये 1 -1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पर A कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ A इनवर्स 1 -1 एंड 2। स्टूडेंट आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ठीक है, हमने एडजॉइंट मेथड यूज़ करी थी, फिर हमने लोअर एलिमेंट्री यूज़ करा, फिर कॉलम एलिमेंट्री, तीनों मेथड में A इनवर्स हमारा सेम है। I have Sim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Again, ठीक है, thank you so much for watching this YouTube channel.